నా పేరు నాగేష్, ఏబీవీపీ మేడ్చల్ జిల్లా కన్వీనర్. ఈరోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ మేడ్చల్ జిల్లా గుడ్లపోచంపల్లిలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో విద్యార్థులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఏదైతే 10th క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు 8th క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి శుభాంగ్ అనే విద్యార్థిపై ర్యాగింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇదే ర్యాగింగ్ చేసినందుకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి 20 రోజుల క్రితమే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఈ రోజు వరకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు. కంప్లైంట్ ఇచ్చినందుకు ఆ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే వార్డెన్, హాస్టల్ వార్డెన్ వేణుగోపాల్ సార్ కానీ, తర్వాత ఆర్పి సార్ కానీ, దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సుమాంగ్ సార్ కానీ, వీళ్ళెవరు కూడా వీళ్ళ గురించి షణ్ముగం ప్రిన్సిపల్ సారు దీనిపైన కనీసం యాక్షన్ తీసుకుంటలేదు. మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తారా మా గురించి అని చెప్పి ఆ స్టూడెంట్ని మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ పైన తన్నడం జరిగింది. ఈ రోజు వరకు ఆ విద్యార్థి మేల్కోలేకపోతున్నాడు. చాలా సివియర్ యాక్షన్ కండిషన్ ఉంది ఆ స్టూడెంట్ జీవితము. ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కంప్లైంట్, స్కూల్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు వరకు దాని రెస్పాన్స్ దొరకలేదు. పేరెంట్స్ చాలా బాధపడుతున్నారు. ఈ స్కూల్లో ఏమేమి జరుగుతుంది, ఎంఈఓ గారు కానీ, డిఈఓ గారు కానీ, కలెక్టర్ గారు వెంటనే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అన్ని స్కూళ్ళ పైన, స్పెషల్లీ డిఆర్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పైన ఒక సర్చింగ్ చేసి ఎవరైతే దీనికి పాల్పడ్డారో ప్రిన్సిపల్ కానీ, హాస్టల్ వార్డెన్ కానీ వీళ్ళందరినీ సస్పెండ్ చేయాలి. దీనికి ఉన్నటువంటి సిబిఎస్ఈ పర్మిషన్ని కూడా తీసేయాలి. అలాగే ఈ యొక్క స్కూల్ని సీజ్ చేయాలని చెప్పి ఏబీవీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మీరు చేస్తే ఏం స్పందించట్లేదు. నెక్స్ట్ మీ కార్యాచరణ గతంలో ఆగస్టు 15th రోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పేరెంట్స్ వచ్చి 5 days క్రితమే ఒక లాస్ట్ 10 days అవుతుంది కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అని చెప్పి మళ్ళీ అదే స్టూడెంట్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు 10th క్లాస్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు మళ్ళీ అదే స్టూడెంట్ని కొట్టడం జరిగింది కంప్లైంట్ ఇచ్చినందుకు. 20th इवनिंग को ये हो गया क्या होगा? नमस्कार, मैं बीना सेवक। मेरे बेटे को मैं 8th क्लास में, मैं यहाँ पे मेरे बेटे को हॉस्टल में मैंने एडमिशन करवाया था। तो 10th के बच्चे डे 1 से उसके साथ में रैगिंग एंड बुलिंग कर रहे थे। तो 15th to 19th छुट्टी थी। 20th की मॉर्निंग जब मैं ड्रॉप करी तो मैंने राजेंद्र प्रसाद को जो इश्यूज़ थे सारे मैंने बताए। मेरे बताने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद ने उसे बहुत ही लाइट लिया। कौन सा इश्यूज बताया, क्या हुआ? मैंने मेरे बेटे को डे 1 से जो है, जब मेरे बच्चे को मैं छोड़ करके मेरे बच्चे को जब मैं छोड़ करके गई हूँ यहाँ पे, तब से जो 10th के बच्चे उसको बोल रहे हैं हु आर यू, तो मेरे बच्चे ने बोला आई एम अ न्यू कमर, माय नेम इज़ दिस। उसके बाद से मेरे बच्चे को वो बोल रहा है कि डू यू वांट टू सी रैगिंग, कम आई विल शो यू। मेरा बेटा वहाँ से डर के निकल गया। निकलने के बाद से नेक्स्ट डे से मेरे बच्चे को आते जाते माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद उसके सर पे, बम में, प्राइवेट पार्ट में आते जाते मारते रहते हैं, टच करते रहते हैं। तो मेरा बेटा उसका नोट्स फाड़ दे रहे हैं। तो मेरा बेटा जाके कंप्लेंट किया आरपी को और पांडुरंगा सर को, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 15th के आफ्टरनून हम उसको लेकर के गए, तब जो है बच्चे ने हमें सारी बातें बताई। तो हम जब 20th के मॉर्निंग बच्चे को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आए थे, ड्रॉप करने के बाद में हमने आरपी के नॉलेज में सारी बातें डाली। उसके बावजूद आरपी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चों को, जो सीनियर ग्रेडर्स के बच्चों को बुला करके कुछ बात नहीं किया, उसने प्रोवोक किया है उन बच्चों को। तो शाम का जब एक 5 मिनट का जो वाटर ब्रेक होता है, मेरा बच्चा क्लास से अपना जो स्टडी आवर्स था, स्टडी आवर्स से निकल करके बच्चा पानी पीने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। तो 10th ग्रेड के बच्चे ने उसे रोक करके गंदी गंदी गालियाँ दी। तो मेरा बेटा बोला आप लोग मुझे क्यों ऐसी गालियाँ दे रहे हो, आप साइड हटो, मैं जा रहा हूँ आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करने। तो बच्चे ने क्या करा, उसको धक्का मारा। पहले धक्का मार के हाथ के यहाँ पे उसका गर्दन को ड्रैग करके लेके आके चोक करके, उसके गले को चोक करके उसको मारा उन लोगों ने प्राइवेट पार्ट में, और पूरा हाथ को यहाँ से यहाँ तक स्क्रैच कर दिया। उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ से उससे छुड़ा करके मेरा बेटा गया तो देखा कि वहाँ पे कोई भी ना तो पांडुरंगा सर थे और ना ही आरपी थे। 5 मिनट के बाद पांडुरंगा सर आ रहे, तो आकर के उन देखने के बाद में उसने आइस पैक दिया लगाने के लिए, और बिना हमसे कंसल्ट करे उसको जो है, बिना, क्यों बच्चा है उसे किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकता है, बिना हमसे पूछे पाछे कंसल्ट करे उन्होंने उनको मेडिसिन डोलो दे दिया। इसके 5 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद आरपी आए। तो आरपी को वो जा कर के ऊपर पता नहीं क्या बोल कर के आए। लोग नीचे आने के बाद में मेरे बच्चे को ये बोल, सारे जने ये कह रहे, आरपी सर भी थे वहाँ पे, सबको ये बोल रहे कि है यहाँ पे क्या रैगिंग बुलिंग होता है क्या, ऐसे बोल करके मजाक उड़ा रहे। मेरा बच्चा काफ़ी ट्रॉमा में था सर। तो रात के इंसिडेंट 6:57 के बीच में जब इंसिडेंट हुआ, रात के 9, साढ़े 9 के आसपास आरपी फ़ोन करके बोल रहा है कि मैडम नथिंग हैपन देयर, जस्ट एक आर्ग्यूमेंट हुआ एंड वेरी स्मॉल स्क्रैचेस इज देयर। तो हमने बोले ठीक है, काम की जब शुभंग से बात करवाइए हमारी, तो वो पहले तो मना कर रहा था बात करवाने के लिए। बाद में जब हम फोर्स करें, उनको रिक्वेस्ट करें,
तो जब उन्होंने बात करवाया तब मेरे बेटे ने सारा इंसिडेंट बताया। हम सन सिटी में रहते, वहाँ से यहाँ आकर के रात के 11 साढ़े 11 मेरे बच्चे को मैं वापस लेकर के गई। एज अ पेरेंट्स आवाज़ किसी का भी ऊंचा होता है। मेरे जैसे मेरे हस्बैंड ने आवाज़ ऊंचा किया तो हस्बैंड को आरपी बोलते हैं, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। मेरे हस्बैंड वही टाइम हाथ जोड़ के बोले, सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ करो, आप मेरे बच्चे का आउटपास बना के दे दो, हम लेकर जाना चाह रहे हैं मेरे बच्चे को। इसके बाद में 20 तारीख को जब हम वापस सवेरे नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग हम PSI यहाँ नहीं, मैं सवेरे खुशी बोलकर जो पेरेंट रिलेशन कोऑर्डिनेटर है उसको मैं सुबह से बोल रही हूँ, मैडम प्रिंसिपल का नंबर दो, मुझे बात करना है, बट वो नंबर नहीं दी। लास्ट में थक करके मैं गई PS में जाकर के मैंने कंप्लेंट आप लोग ये किया। इंसिडेंट किनको बताया पाए ऊपर ऑफिसर वालों को? क्या बताया, क्या बोल रहा है अभी प्रिंसिपल, क्या बोल रही है इसके बारे में? प्रिंसिपल सर सामने ही नहीं आ रहे, सामने ही नहीं आ रहे। मैं उस दिन सुबह से मैंने टाइम दिया इनको बात करने के लिए, लेकिन एक बार भी प्रिंसिपल सर सामने नहीं आए। तो मैं जाकर के थक के मैं गई PS में, वहाँ कंप्लेंट किया। 21 को हमने FIR किया, तो बोले कि ठीक है हम ऐसे करते हैं। 21 तारीख को अभी आपका डिमांड क्या है फिर? अभी मैं चाह रही हूँ प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद जी, प्रिंसिपल सर, इनको जो है परमानेंट टर्मिनेशन किया जाए, और जो 5 बच्चे इसमें शामिल हैं, जितने भी बच्चे शामिल हैं उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको भी जो है सस्पेंड किया जाए, एक्सपेल किया जाए, परमानेंट एक्सपेल किया जाए उनको भी, ऐसा दूसरा बच्चों को नहीं बोल सकते, ताकि नियर फ्यूचर में दूसरे बच्चों के साथ में ये सारी चीज़ें ना हो। मैं ये लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं, बाकी सभी बच्चों की सेफ्टी के लिए लड़ रही हूँ। అందరికీ క్షణార్థులు. పెన్నుతో మీకు మంచి సోబతుందా? తెలంగాణ యాసలో ముచ్చట్లు రాయడం మీకు తెలుసా? మీలాంటోళ్ళనే ఎత్తుకుతుంది మా క్యూ న్యూస్. మాకు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్ 8688892608. qnews@gmail.com కు మెయిల్ చేయండి.